trumpet will be blown by everywhere because first joint replacement free, huh? Both idea are something. And from a podcast, I keep on remembering the shot in Welcome, Manipal Meeting, where one of the heroes, Sunil Shetty, refuses to become the hero, and the director says, "चल, अभी तुम hero बनाना पड़ेगा." तो वैसा शेयर में दिलीप, चलो, किसको भी मैं hero बना दे Now सकता the हूँ। third hero is here now. We try our best. Let's see it. You all have a name for it? Huh? Ori? Ori, na? I heard Ori. This robot should be partying every night. We have decided a slogan of the Kori with the choreography. So you are wearing so many hats. What to address you as choreographer, director, it becomes very complicated. Just Farah. Also, one more thing, we are already calling her Farah. We can't call her Faraji because Faraji sounds very, very old. That is very true. She's young at heart, she's always going to be young. Why you have to say that? नी में आपने ऑलरेडी बोल दिया कि आपको यंग नहीं हो। Well, I think they are waiting to. अरे भाई बीच में आ रहे तो हो anesthesia में होता है ना? अरे ये लोग बस लेट ना। How are you all? Good afternoon, everybody. आपको दिख रहा है कि आप लोग बैठ जाओ, हटो ना यहाँ से। हाँ? अरे उधर साइड में पीछे वालों को कैसे दिखेगा? तभी इतना क्वाइट हो ना आप लोग? हाँ, अभी बात कर सकते हो ना? Firstly, thank you so much, my dearest Farah Khan. She is such a sweetheart and she's so jovial, she's so happy personality. You know, suddenly there is such a beautiful aura, everybody's been waiting for you since morning and looking forward. I was told to come at 12 o'clock. I'm still 5 minutes early. You have time, you have time to save your time and ask me to come early. And you know, it's such a sweet thing. I just called Farah and I said, we're doing this little thing. I would love to have you to come and inaugurate and our logo, and it will be great to have you around. And with nothing else, she just told me, okay, tell me the time and the place. And she's here today. So please, a big round of applause for her. So I know Masuma said she was on Indian Idol 1. So we have been friends and of course. And I know Farah since she was directing a song for Big Boss, Yes Boss. But she was so busy with her work that we were all there in the background doing something else. And we didn't know knew each other so personally then, but from Indian Idol there's a bond that we established. There's so many similarities between our lives and the kind of dynamic woman that she is. She's magnetic and I'm so happy today that she's here. Just checking with lawyers. Tell us something about everything. How are you managing your time? Like you're running around now from here, she's going to go for a shoot. How do you do all this and how do you still remain so beautiful? We all know that women are very good at multitasking. Sorry, doctors. Women doctors are better at multitasking, I'm sure. So we all, I mean, I wore the outfit I'm supposed to wear for the shoot, I'll just remove the jacket and go there. Yeah, so time management is utmost important, so let's not waste any time and let's inaugurate the main star of the event, not Deepak, the robot. First of all, warm welcome on a Sunday. Everybody is coming over here and I've been waiting for Farah to come. And Farah is not late. Yeah, Farah is not late, she's before time. So our period of anticipation has been reduced. So everybody has excitedly come not for the robot, it's more to see Farah. Everybody is a fan of yours. Yesterday I was told don't come 10 digits. Who was the doctor who said that?
मैम क्या संदेश देंगी आज सिटी केयर हॉस्पिटल में आप आई हैं रोबोटिक क्रिटिक केयर में जी क्रिटिकल एशिया हॉस्पिटल ना सिटी केयर एशिया हॉस्पिटल में आई हैं रोबोटिक आज ओपनिंग हुआ है यहाँ पे क्या मैसेज देंगी? मैसेज कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात है कि क्रिटिक केयर एशिया जो कि कुर्ला में है हैव गॉट देयर थर्ड रोबोटिक सर्जन ओवर हियर थैंक्स टू डॉक्टर मासूमा एंड डॉक्टर दीपक जो रोबोटिक से जॉइंट सर्जरी नी रिप्लेसमेंट आई थिंक दे विल बी बेटर टू टेल हिप रिप्लेसमेंट इट्स अ वेरी फैंटास्टिक टूल टू हैव इन एनी हॉस्पिटल। मैडम रोबोट के आने से डॉक्टर की पेशे के ऊपर कुछ आ जाएगा? देखो कैमरा नया लूंगी तो क्या डायरेक्टर डायरेक्शन कैमरा थोड़ी करेगा, डायरेक्टर ही करेगा ना। तो जैसे ये रोबोट है वो सर्जन ही सर्जरी करेगा, लेकिन इट्स अ बेटर टेक्निकल टूल फॉर द सर्जरी। सर्जरी तो आई थिंक डॉक्टर सर्जन विल बी मोर क्वालिफाइड के आप डॉक्टर शेट्टी जी, आपने रिसेंटली शेट्टी मैम का जो फिल्म स्टार है शिल्पा शेट्टी, उनकी बेटी का आपने ऑपरेशन किया था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये रोबोटिक तो जैसा भी मैडम ने बताया, अभी आप सब लोग कैमरा यूज कर रहे हैं, बट सब कैमरा का अलग अलग रिजोल्यूशन रहेगा। कोई 3K 4K कोई 8K रिजोल्यूशन रहेगा। वैसे ही हमारे सारे रोबोट्स जो है उसके प्रिसीशन अलग अलग लेवल के होते हैं। जैसे आपका अच्छा कैमरा एक अच्छा पिक्चर निकाल सकता है, वैसे ही हमारा एक रोबोट अगर अच्छे से काम करेगा तो एक बहुत बढ़िया रिजल्ट पेशेंट को दे सकता है। ये यहाँ डॉक्टर को रिप्लेस करने नहीं आए हैं, डॉक्टर को एनहांस करने आए हैं। देखिए रोबोट तो रोबोट होता है, लेकिन अगर किसी जगह पे रोबोट जहाँ यूज करती है अगर वहाँ पे फेलियर होती है तो शायद कुछ लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे रोबोट अगर फेलियर होती है तो एक इंसान की जान जा सकती है। तो इसके फेलियर के बारे में कितने चांसेस रहेंगे? इसीलिए वो हाईएस्ट प्रिसीशन वाला रोबोट लेके आए हैं एंड इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आपको जो सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन, इनफाइनाइट ओपिनियन आप दुनिया के एक साथ ले सकते हो कि व्हाट इज द बेस्ट वे आपके पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। आप खुद तजुर्बेकार हो, ऊपर से ये AI द्वारा आपको गाइड करेगा कि और प्रिसीशन कैसे कर सकते हैं। एंड इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम कहते हैं ना, इसीलिए आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए चाहिए। स्मिथ एंड नेफ्यू जो बहुत रिनाउंड कंपनी है, ये उनका रोबोट है। तो ये टेक्नोलॉजी इन लोगों ने बहुत लोगों पे टेस्ट करके चेक करके प्रिसिशन के साथ बनाई है, इसीलिए हमने ये इंस्टॉल किया है। बहुत सारे रोबोट अवेलेबल हैं और बहुत शायद सस्ते भी होंगे, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी पे नहीं जाते क्योंकि हमको भरोसा जहाँ है, जहाँ पे प्रिसिशन देखकर ही उसको मार्केट में लाया गया है, हमने वो रोबोट इंस्टॉल किया है। देखिए कुर्ला में आपका 31st इंस्टॉलेशन और 3rd इन मुंबई है। कुर्ला एक मध्यम वर्ग एरिया है जहाँ पे गरीब लोग, मीडियम क्लास के लोग रहते हैं। किस तरीके से आप लोग कुछ रोबोट से ऑपरेशन होंगे तो उसके रेट भी बढ़ जाएंगे, उसके लिए कुछ आप लोग ने कुछ ये किया है? नहीं, हर डॉक्टर समझता है कि हम लोग एलिटिस्ट प्रोफेशन नहीं है। सब वैरायटी ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटा को कोई भी डॉक्टर को या कोई भी हॉस्पिटल को इलाज करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पैकेजेस है कि जहाँ जनरल वार्ड में भी पेशेंट आए, आपके घर पे कोई काम करने वाला भी आए, तो वो भी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है, अफोर्डेबल प्राइस पे कर सकता है। एंड ये ध्यान में रख के ही किया हुआ है, ये खाली रिच के लिए नहीं है, ये सबसे लोएस्ट अर्निंग पर्सन को भी अफोर्ड हो सकता है, ऐसे टाइप की टेक्नोलॉजी। Can we say from Dilip to Farha? No, Dilip, from Farah to Dilip it will be. उल्टा है। अगर घर में भी अगर रोबोट आ जाए तो दिलीप की कमी होगी की? दिलीप किसी को टिकने देगा नहीं वैसे। एक दिन वो मेरे को भी निकाल देगा, मेरे को लग रहा है वो घर टेक ओवर कर लेगा। नहीं, मगर अगर मैं उसके लिए अच्छा मिक्सर ग्राइंडर लाऊं, अच्छा माइक्रोवेव, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स लाऊं, तो उसके डेफिनेटली उसके स्किल बढ़ेगा ना खाने का, वैसा ही है ये। और आज आगे फ्यूचर में अगर कोरियोग्राफी करने के लिए भी कोई रोबोट इंट्रोड्यूस हो जाता है तो आपका क्या प्लान है? भाई अभी एक्टर्स तो रोबोट्स हो ही गए हैं, तो कोरियोग्राफर को भी कर दो, मैं तो बोलती हूँ बेस्ट है, रोबोट्स के से भी कोरियोग्राफी करा दो। इस क्वेश्चन यहाँ पर है डॉक्टर, आपके पास और भी रोबोट्स हैं और ये जो है ये लेटेस्ट मॉडल है, तो दूसरों में और इसमें क्या ऐसा मेजर फर्क है जो कि आप बोलना चाहेंगे? दूसरे भी बहुत लेटेस्ट है, क्योंकि 2-3 साल में लिए हुआ है, पर टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव होते रहती है, तो ये रोबोट और भी प्रिसाइज हो जाता है, बाकी के उससे थोड़ा 19-20 और बेटर टेक्नोलॉजी आई हुई है। तो हमेशा हम लोग एज अ हॉस्पिटल ये देखना चाहते हैं कि जो भी बेस्ट है पेशेंट के लिए, हम लोग पे एक भरोसा रख के आते रहते हैं पेशेंट, तो हमारी जिम्मेदारी है कि टेक्निकली उनको जो बेस्ट चीज़ें हैं वो अवेलेबल कर दें। और ये रोबोट की खासियत है कि ये कहीं पर भी जा सकता है, तो जहाँ पर भी जो पेशेंट की जैसी नीड है वो हॉस्पिटल में वो
सर कोरी 2.0 ही क्यों नाम दिया गया इसको? नहीं, ये नाम कंपनी से आया है, कंपनी से आया है। और वैसे ये रोबोट ना संडे को छुट्टी मांगेगा, ना वैनिटी वैन मांगेगा, ना ओवर टाइम मांगेगा, तो बेटर है ना। ये तो मैं बोलती हूँ फिल्मों में भी ले आओ। तो ये जो रोबोट है कोई अपना, ये जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के दौरान टाइमिंग में भी कुछ करेगा? मतलब जैसे कि अगर किसी ट्रीटमेंट में होने के बाद में कम समय में जो रिकवरी होता है तो उसमें कुछ असर जाए? आप सोच रहे हो ना अपना नी रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बढ़िया सवाल था आपका। सो रोबोटिक प्रिसीशन से सिर्फ प्रिसीशन नहीं मिलता है, पेशेंट का रिकवरी भी बहुत फास्ट होता है। तो ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में एक्सेप्टेड इसीलिए है क्योंकि सर्जरी से जो पेन होता है पेशेंट को, वो इस टेक्नोलॉजी से वो पेन कम होता है। पेन कम होने की वजह से लोग एक्सरसाइज अच्छे तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से रिकवरी शॉर्ट होता है। इनफैक्ट हॉस्पिटल के लिए नुकसान है क्योंकि पहले हॉस्पिटल में 7-7 दिन पेशेंट रहते थे मैडम, अब तो 2 दिन में पेशेंट घर चले जाते हैं। तो अब 2 दिन में पेशेंट अगर घर जाएगा तो आप ये सोच ही सकते हो कि तो हॉस्पिटल को तो 5 दिन का बेड चार्जेस का लॉस हुआ है। बट हॉस्पिटल ऐसे नहीं सोचता है, हॉस्पिटल ऐसे सोचता है कि हम हमारे पेशेंट्स के लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि क्या मध्यम वर्गीय और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए हेल्प करेगा, तो डॉक्टर दीपक नाम जोशी सर का ये पहला रोबोट नहीं, तो हैट्रिक है इनके रोबोट का। इससे पहले 2 रोबोट हमने अंधेरी और मलाड में जो इंस्टॉल किया है, अगर उसका डेटा निकालोगे आप तो सबसे ज्यादा अगर उसी का किसी ने उपयोग किया है तो वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ने ही उपयोग किया हुआ है, क्योंकि उसका बजट ऐसा टेलर मेड किया हुआ था कि 4 जगह पर जाने के बाद लोगों ने रियलाइज किया कि ये डॉक्टर ने बनाया हुआ हॉस्पिटल है, क्योंकि ये खुद एक डॉक्टर है तो वो समझते हैं सब कुछ, बिजनेसमैन नहीं है, कॉर्पोरेट हाउस नहीं है, खुद डॉक्टर होने की वजह से वो थॉट प्रोसेस उनमें आती है कि लोगों को क्या जरूरत होती है, और उस हिसाब से हमने सारा चीज बहुत ही अफोर्डेबल इकोनॉमिक प्राइस में। और मैडम ने बहुत बढ़िया चीज बताया, हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ हम ट्रीटमेंट नहीं देते, डिग्निटी पे भी ध्यान देते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लोग जब हमारे पास आए वो सर ऊंचा करके बाहर जाए, और यही संतोष हियर आई ऐड, जैसे हमारे 4 हॉस्पिटल हैं, जुहू पे, अंधेरी ईस्ट में, मलाड में और कोयला। तो जुहू का जो हॉस्पिटल है वहाँ एक साइड हमारे यहाँ सारे फिल्मी स्टार्स आते हैं, फरा जैसे और सारे कुछ तो फिल्मी स्टार्स आते हैं, बिजनेस मैन्स आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। ऑन दी अदर साइड जू गली है जो सोशो इकोनॉमिकली बहुत नीडी कम्युनिटी होती है। तो ऐसे नहीं कि हम उनको ट्रीट नहीं करते, उनको भी हम वही ट्रीटमेंट देते हैं जो हम जू के इस साइड देते हैं, जो हायर लेवल्स को देते हैं। तो इस तरह का हॉस्पिटल है क्रिटिकल हॉस्पिटल, जहाँ हमारे लिए पेशेंट होता है, हर जिंदगी होती है और हमको उनको ट्रीटमेंट देना होता है। अगर किसी की हम हेल्प कर सकते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। देखो, हॉस्पिटल इज मेड बाय द डॉक्टर्स and by the people behind it, and I don't know anyone better than Dr. Masuma and Dr. Deepak. I know them for years. They selflessly do work from COVID times to before also. मैं तो ज़्यादा COVID time से I know how much they've helped. So my trust is in both of them. तो अगर इन्होंने बोला रोबोट अच्छा है तो रोबोट अच्छा है। कोविड के टाइम में बहुत हेल्प किए थे क्रिटिकल, we shared Kotra and we know that. That's what hospitals are That's the made best one. by the people and the doctors. Even who about run them. Santosh Shetty sir. सर टेक्नोलॉजी के आने से हमेशा देखा जाता है कि टाइम कहना से चाहूँगा कि बाकी सब प्लेटफॉर्म पे इंसानियत की बातें की जाती है, हॉस्पिटल और डॉक्टर्स एक पेशा है जहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। हमारे लिए हर पेशेंट इम्पॉर्टेंट है, उनका औहदा क्या है, उनका सक्सेस क्या है, वो क्या करते हैं, कौन से मजहब से आते हैं, जो सब बाकी के यहाँ निकाल लेने की कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ हमेशा से निकला हुआ ही है। लोग किसी को उनका मजहब नहीं पूछते हैं, किसी को उनकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग नहीं पूछते हैं, सेलिब्रिटी है, नॉन सेलिब्रिटी है, हमारा दिल लगा के काम करना सब में सेम रहता है। कॉमनली जो रिच होता है उसको सिंपल टाइप ऑफ बीमारियाँ होती है और जो पुअर रहता है उसको मोर कॉम्प्लेक्स बीमारियाँ होती है। तो हम लोगों को पुअर में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, एंड हम लोग उतनी तत्परता से, उतने ही डिसिप्लिन से जो पुअरेस्ट पुअर है उसको बचाने की कोशिश करते हैं, एंड उसको बचाने के बाद जो हम लोगों को आनंद मिलता है, आई थिंक दैट इज वर्थ ऑल द मनी इन द वर्ल्ड। ये तो टेक्नोलॉजी के आने से टाइम सेविंग जो है वो होता है, तो कोरी के आने से कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम सेविंग होगा, क्या बताना चाहेंगे सर? तो सबसे पहली बात तो जो टाइम सेव होगा वो ओटी के अंदर होगा, क्योंकि सर्जरी
जो पहले 1.5 घंटे का होता था वो 45 मिनट्स का होगा। तो सिंपल लॉजिक है, अगर कोई पेशेंट एनेस्थीसिया के अंडर 1.5 घंटा है, अब वो सिर्फ 45 मिनट्स रहेगा, तो उसको बोलते हैं रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया। वो रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया कम हो गया, वो ओटी से जल्दी बाहर निकले, उनको पेन कम होगा, तो उनका रिकवरी फास्ट होगा। वो हॉस्पिटल में कम रहेंगे, उनको दवाई कम लेना पड़ेगा। अगर उनका रिकवरी जल्दी हुआ तो वो सोसाइटी में, कम्युनिटी में वापस से जल्दी भाग ले पाएंगे। यानी अगर कोई नौकरी छोड़ के हमारे पास आ रहा है, पहले अगर 2-3 महीने का छुट्टी लेना है तो उसको 2-3 महीने का उसका घर का कमाई बंद हो गया। बट अगर अभी 4 हफ्ते में ही वो वापस से अपने काम पे जा सकता है, तो ये सारे छोटे छोटे चीजें एक एक करके ऐड हुआ है। ओटी के अंदर कम समय, ब्लड लॉस कम होना, जख्म छोटा हो जाना, पेन किलर की कमी हो जाना, रिकवरी फास्ट होना और हॉस्पिटल से जल्दी घर चले जाना। हम जानते हैं कि अगर एक पेशेंट आया तो उसके साथ 3 रिलेटिव भी आ जाते हैं जो छुट्टी लेके आते हैं, तो इनको भी अपने काम पे जाने को, तो ओवरऑल ये बेनिफिट है। और ये ग्लोबली हो रहा था, ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार हो रहा है, ये ग्लोबली हो रहा था। बट उसको इंडिया में लाने के लिए एक जिगर लगता है, क्योंकि ये सब कॉस्टली इक्विपमेंट है और सबकी बस की बात नहीं है। कॉर्पोरेट्स के लिए तो बहुत ही आसान है ये, बट एक डॉक्टर और डॉक्टर फैमिली के लिए ये करना बहुत मुश्किल है, और एक बार नहीं 3 बार करना। और यही क्रिटिकेयर एशिया का स्ट्रेंथ है कि हर जगह पर पेशेंट फर्स्ट पॉलिसी, कि पेशेंट पहला देखेंगे, बाद में सब कुछ।